Ecclesiastes 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ेंगे. Chapter 6, Vanity of riches without use, of long life without good, etc. First verse से पढ़ेंगे. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men, a man to whom God hath given riches, wealth, and honor, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it. This is vanity, and it is an evil disease. If a man beget 100 children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial, I say that an untimely birth is better than he. For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness. फाइव वर्स से आगे पढ़ेंगे. Moreover, he hath not seen the sun, nor known anything. This hath more rest than the others. Yea, though he live 1,000 years twice told, yet hath he seen no good. Do not all go to one place? All the labor of a man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. For what hath the wise more than the fool? What hath the poor that knoweth to walk before the living? Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also vanity and vexation of spirit. That which hath been is named already, and it is known that it is man, neither may he contend with him that is mightier than he, saying, There be many things that increase vanity. What is man the better? For who knoweth what is good for a man in this life? All the days of his vain life which he spenteth as a shadow. For who can tell a man what shall be after him under the sun? Chapter 7, Remedies against vanity are a good name, mortification, patience. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made better. Hallelujah. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool. This also is vanity. Surely oppression maketh a wise man mad, and a gift destroyeth the heart. Eighth verse. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. Say not thou, what is the
because that the former days were better than these? For thou doest not inquire wisely concerning this. Wisdom is good with an inheritance, and by it there is profit to them that see the sun. For wisdom is a defense, and money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Hallelujah. हम पढ़ेंगे आगे 13th verse. Consider the work of God, for who can make that straight which he hath made crooked? In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. All things have I seen in the days of my vanity. There is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. Be not righteous over much, neither make thyself over wise. Why shouldest thou destroy thyself? Be not over much wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die before thy time? It is good that thou shouldest take hold of this, yea, also from this withdraw not thine hand. For he that feareth God shall come forth of them all. Wisdom strengtheneth the wise more than 10 mighty men which are in the city. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Also take no heed unto all words that are spoken, lest thou hear thy servant curse thee. For oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. All this have I proved by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. That which is far off and exceeding deep, who can find it out? I applied mine heart to know and to search and to seek out wisdom and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness. And I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets, and her hands as bands. Whoso pleaseth God also shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one to find out the account, which yet my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found, but a woman among all those have I not found. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Chapter 8. Divine Providence. To be observed, it is better with the godly in adversity than with the wicked in prosperity. First verse से पढ़ेंगे. Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God. Be not hasty to go out of his sight. Stand not in an evil thing, for he doeth whatsoever pleaseth him. Where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, What doest thou?
Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. Because to every purpose there is time and judgment. Therefore the misery of man is great upon him. For he knoweth not that which shall be. For who can tell him when it shall be? There is no man that hath power over the Spirit to retain the Spirit, neither hath he power in the day of death. And there is no discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. All this have I seen, and applied my heart unto every work that is done under the sun. There is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is also vanity, because sentence against an evil is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of man is fully set in them to do evil. Hallelujah. 12 वचन आगे पढ़ेंगे 12 से. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. There is a vanity which is done upon the earth, that there be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked. Again there be wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous. I said that this also is vanity. Then I commended mirth, because a man hath no better thing under the sun than to eat and to drink, and to be merry, for that shall abide with him of his labor the days of his life, which God giveth him under sun. Hallelujah. 16th verse आगे पढ़ते जाएंगे. When I applied mine heart to know wisdom, and to see the business that is done upon the earth, for also there is that neither day nor night seeth sleep with his eyes. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. सभोपदेशक 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय. BSI बाइबल से पढ़ेंगे पहले वचन से 6 अध्याय पहले वचन से. एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है. किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है. यह व्यर्थ और भयानक दुख है. यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है. हालेलुया. Abba, we need your help, Father. क्योंकि वह व्यर्थ ही
आया और अंधेरे में चला गया। ओके, और आगे क्या लिखा है? और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया। तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है कि वह उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? 7 अध्याय जीवन से संबंधित चिंतन। पहले वचन से, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इनमें से क्या उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाले किसी बात को न समझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घ आयु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। बुद्धि ही से नगर के 10 हकीमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निसंदेह पृथ्वी पर
कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है? मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो नीरा बावलापन है को जानूं। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची, और यह बात निकली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। हालेलुया। 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। बुद्धिमान के तुल्य कौन है, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। राजा की आज्ञा मान। 2 वचन से आगे, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना, न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ कहता है, जो कुछ चाहता है करता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं, उन सबको ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। दुष्ट और धर्मी 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु उन जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि
यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे न पा सकेगा। हालेलुया। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 54 वर्स से 62 चैप्टर 62 वर्स तक, और 2 सैमुअल 2 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 54 वचन से 62 वचन तक, और दूसरा शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में इन अध्याय में से वचनों को पढ़ना है। हमने बहुत मन लगाकर पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मन लगाकर सब कुछ अपना इंटरेस्ट उंडेलना है, अपनी धुन, अपना पैशन उंडेल कर इन वचनों को हमने अपने अंदर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये वचन 2 साल के अंत में जाकर आप देखेंगे वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे, और आपके जैसा सुंदर, आशीष से भरा हुआ, बहुतायत के गुणों से भरा हुआ, परमेश्वर के ईश्वरीय वरदानों से भरा हुआ ऐसा कोई और आपको मिलेगा नहीं, और ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो इस अनुग्रह के आत्मा का हमने लाभ लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इच्छा है कि हम वो मंजिल में पहुँचे, ऐसे महान चमकती हुई मंजिल में हम पहुँचे। और वो होने के लिए परमेश्वर ने हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है, हमें मन आने के लिए, ऐसा होने के मन आने के लिए अनुग्रह का आत्मा हम में रखा है। तो निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे मन को खींच ले, हमको खींच ले, पवित्र आत्मा हमको खींच ले, और तेरे वचनों के अंदर हमको गढ़ दे, ऐसा गढ़ दे कि हम कभी उस वचन से अलग ना होने पाए। इतना गहराई से हमारे अंदर वचन को गढ़ दे, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर के जो डेस्टिनी है हमारे लिए ठहराई गई, उस मंजिल में उतार कर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने दे। हमारा जीवन फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर के आत्मा, हमें सहायता कर, हमें मन लगा वचनों के अंदर, हमारा मन लगने दे पिता, हमें इंटरेस्ट आने दे, हमारे जीवन को वचन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रसन्न करने दे, हमारा प्लेजर बनने दे, हमारा डिलाइट बनने दे, हमारा पैशन बनने दे, वचन के ओबीडियंस में चलना हमारा जीवन शैली बनने दे, हमारा लाइफ स्टाइल बनने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें सारे रोगों से चंगा कर, हर श्राप बुराइयों से आज़ाद कर, हर प्रकार का छुटकारा जो हमको वचन पढ़ने में जो भी बाधाएं लाता है, वो सारे बातों में हमको छुटकारा दे। हमारे फ्रेंड सर्कल्स में से, हमारे जवान उम्र के हर पैशंस में से, हर डिज़ायर्स में से, हर एक उम्र के हिसाब से होने वाले अर्थली अफेयर्स, जिम्मेदारियों में से समय निकाल कर तुझ में हमें समेट ले। पवित्र आत्मा तू हमारा दोस्त बन जा, तू हमारा फ्रेंड बन जा, तू परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के दिशाओं में हमको उठा कर चला। हम खास विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें व्यवस्थितपन में लेकर आ, जिसमें हमें परमेश्वर देखना चाहता है, उसमें हमें लेकर आ, हमें उसी डेस्टिनी के रास्ते पर चला। हम अपने अंदर से यही बात
अपने मन से, अपनी इच्छा से मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में तेरा वचन, परमेश्वर का वचन फिट एंड फिक्स हो, ऑर्डरलीनेस में हमें लेकर आए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड, धन्यवाद हो यहोवा। वी थैंक यू जीसस। हमारा धन्यवाद बलिदान स्वीकार कर हमारी प्रार्थना विनतियों को सुन। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।